Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video class. So, we have just completed our exercise 8.1, which was basically based on percentage. Now, we are moving to the exercise 8.2. In this question, there will be questions of percentage increase or percentage decrease, then profit percent, loss percent, CP, cost price, selling price, then there is a discount, mark price questions, and then there will be question of VAT, GST, and also some tax questions. So the first topic under this exercise 8.2 is your percentage increase और percentage decrease, जिसमें आपको percentage increase या फिर percentage decrease से related questions मिलेंगे. So the formula for finding out the percentage increase or percentage decrease is the same, which is equals to change in the value upon original value multiply 100. This change in the value can be decrease in the values also, or it can be increase in the value. If the question is asking percentage increase, then the value, the change increase in the value you will write down here in the change in the value, and the original value will be the same जो स्टार्टिंग में थी, और जो इंक्रीज हुई है वैल्यू जितनी इंक्रीज हुई है दैट विल बी द चेंज इन द वैल्यू. इफ वी आर फाइंडिंग आउट परसेंटेज डिक्रीज, देन द चेंज इन द वैल्यू विल बी द वैल्यू विच डिक्रीज, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी, मल्टीप्लाई बाय 100. तो दिस गिव्स यू व्हाट, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस of this exercise 8.2, which is based on the concept of percentage increase or percentage decrease. So let us start with the exercise 8.2. Now this is the question number 2 of your exercise 8.1, sorry 8.2. The question number 1 we will discuss after solving the question number 2, because this question number 2 is the main base for the concept of percentage increase and percentage decrease. When we are able to understand the question number 2, we will be easily solve the question number 1 of this exercise 8.2. So question number 2 says, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? So the number of people who visited zoo is on Sunday is 845. संडे को 845 लोगों ने क्या किया है, जू विजिट किया हुआ है. एंड ऑन मंडे ओनली 169 पीपल विजिटेड द जू. जो मंडे को कितने पीपल ने विजिट किया है, 169. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे. मंडे को कितने लोग जो डिक्रीमेंट है, परसेंटेज डिक्रीज का जो मंडे को जो पीपल ने विजिट किया, ठीक है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे, उसका हमें क्या निकालना बेटा, परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो number of people visited zoo on Monday is equals to कितना, sorry not Monday, on Sunday is equals to how much, कितने पर्सन पीपल ने संडे को जू विजिट किया, 845. कितना, 845. एंड द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे, मंडे को कितने पीपल ने जू को विजिट किया, 169 पीपल. कितने पीपल, 169 पीपल. सो डिक्रीज इन people visiting zoo on Monday. So कितने people का डिक्रीमेंट आया है मंडे को, 845 थे, कितने आए, 169 आए. तो कितने डिक्रीमेंट हो गया, 15 में से 9 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, इट इज 6, ये 3 हो जाएगा, ठीक है. एंड
सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 में से 6 माइनस करते हैं वी गेट 7, ये आपका हो गया 7, 7 में से 1 माइनस करते हैं वी आर गेटिंग वट 676। तो कितने पीपल का डिक्रीमेंट है बेटा 676, दिस इज द चेंज इन द वैल्यू। ओरिजिनल कितनी थी 845, कितने में का चेंज आ गया 676 का। सो परसेंटेज डिक्रीज in people visiting zoo on Monday will be equals to what, कितने का चेंज आया बेटा 676, टोटल कितने थे 845 मल्टीप्लाई 100। ये कैसे निकाला बाय यूजिंग फॉर्मूला चेंज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज व्हाट, जो स्टार्टिंग में संडे को जो लोगों ने जू विजिट किया, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके वी हैव फाइंड आउट दिस। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। दिस विल बी 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 20 जा 5 169, देन 13 से डिवाइड करते हैं, 13 5 जा 65, देन 13 2 जा 26, 52 टाइम्स कट हुआ 13 13 जा अगेन 13 से कितने टाइम्स 13 1 जा 13 13 4 जा, एंड वी आर गेटिंग 4 मल्टीप्लाई 20 which is equals to what 80. So percentage decrease in the people visiting zoo on Monday is how much 80%. So there is a 80% decrease in the people visiting zoo on Monday than on Sunday. Sunday के रिस्पेक्ट में कितना डिक्रीमेंट आया बेटा 80% का डिक्रीमेंट आया हुआ है पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे में। ठीक है, नाउ विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन of this exercise 8.2. I hope this question number 2 is clear to you all. Now we will move to the question number 1 of this exercise 8.2. Now this is the question number 1 of your exercise 8.2. This question number 1 says a man got 10% increase in his salary. किसी एक आदमी को 10% इंक्रीमेंट मिला है उसकी सैलरी में। आफ्टर द इंक्रीमेंट उसकी जो न्यू सैलरी है, इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। इंक्रीमेंट के बाद जो उस आदमी की जो सैलरी है वो कितनी हो जाती है बेटा ₹1,54,000, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग हिज ओरिजिनल सैलरी, जो स्टार्टिंग इंक्रीमेंट से पहले जो उसकी सैलरी थी, दैट ही इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन द सैलरी, एंड वी हैव बीन गिवन परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, और परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद जो न्यू सैलरी है दैट इज गिवन टू यू। सो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, एंड वी विल बी गोइंग टू यूज द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ this video class, that was percentage increase is equals to what change in value upon my original value multiply 100. So let us start with the solution. So first of all we will let man's original salary be x। हमने लेट किया, जो मैन की ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या थी x थी। ठीक है, सो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू, न्यू सैलरी, आपको क्या गिवन है न्यू सैलरी, एंड दैट इज गिवन टू यू हाउ मच ₹1,54,000। एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट अ चेंज इन द सैलरी, अगर मेरे को चेंज इन सैलरी फाइंड आउट करना है तो दैट हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट, आई विल सब्ट्रैक्ट न्यू सैलरी बाय ओरिजिनल वन। न्यू सैलरी को ओरिजिनल सैलरी से क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट अ चेंज इन द सैलरी, सो दैट विल बी 1,54,000 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज अवर चेंज इन सैलरी, एंड वी नो दैट परसेंटेज इंक्रीज कितना गिवन है हमें, परसेंटेज इंक्रीज दिस इज गिवन टू यू 10%, कितना दिया बेटा 10% दिया। और आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू
multiply 100. So this is the formula that we are going to use. Now percentage increase is given how much? 10%. So this 10% is equals to what? Change in the value. Change in value कितनी है बेटा? 1,54,000 minus x. This is the change in the value. So I am inserting inside a bracket. Why? Because this is the whole expression, that is change in value. अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी बेटा? x मल्टीप्लाई वट 100. अब देखो 10 के डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो वट वी विल राइट डाउन 1 ईयर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे बेटा? वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस बिकम्स 10 मल्टीप्लाई x which is equals to what? 10x only, and this becomes 1 multiply same thing. तो ये हो जाएगा 100 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 154,000 minus x. So this 10 multiply x क्या हो जाएगा बेटा? आपका 10x हो जाएगा. It will be your 10x. So 10x is equals to what? This much. Now हम इसको solve करते हैं. So this becomes what? 10x 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. हो जाएगा 154,000 के साथ लास्ट में 100 और से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और 2 zeros और ऐड हो जाएंगे. दिस 100 मल्टीप्लाई माइनस एक्स विल बिकम्स व्हाट? माइनस 100x. सॉल्व करते हैं. माइनस 100 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 100. सो दिस विल बी 10x प्लस 100x equals to how much? 154,5 times 0. So 10x plus 100x is 110x is equals to what? 154,5 times 0. So x will be equals to what? 154,5 times 0 अपॉन में 110. 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये 154 4 टाइम्स 0 कितने टाइम्स डिवाइड होगा बेटा? 154 11 से 14 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 14 लग गया. लास्ट में कितने जीरोस? 1 2 3 4 4 जीरोस पुट कर. सो एक्स इज कमिंग इक्वल्स टू व्हाट? 1 4 0 0 0 0. So 1,40,000 is the original salary of this man. So I hope you understood this concept of question number 1 also. So with this we finish up with the today's class. Don't forget to send me your lab manual activity from the roll number 11 to 30. Sorry, 11 to whole 34. So with this we finish up with the today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.